नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेल, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। Students, today our session topic name is Sarv Shiksha Abhiyan, norms or components. We will discuss both language, first in English, then after Hindi. Let's see in English. Norms or components. Let's see step by step in points. First point is teacher related. One teacher for every 40 children in primary and upper primary schools, at least 2 teachers in primary schools, one teacher for each class in upper primary school. And second norm component is alternative school facilities. Within 1 kilometer from each residence house according to state standard, and there are provisions for opening or setting up new schools. Third is upper primary education or field related. As per the requirement, there is a provision to establish one upper primary school on every 2 primary schools, depending on the number of children completing primary education. And fourth is classroom related. There will be one room for each teacher or each class or category, and each primary school has a provision of 2 teachers with 2 rooms including a veranda. And fifth is free textbook related. Under the maximum limit of per child, free books are provided to all girls, SC/ST children studying in primary and upper primary schools through the state scheme. And sixth is regarding maintaining and prepare of school building, only through the school management committee, village education committee, as per the specific proposal of the school committee. Elements of assistance up to grade 5,000 per year are included. Spending funds for the maintenance and repair of the building will be available only to schools that have their own buildings. Seventh is a separate room for headmaster in upper primary school or class. A separate room has been provided for headmaster in upper primary school or class. Eighth is school fund related. For replacement of non-functional school equipment, the use of each primary or upper primary school at the rate of 2,000 per year will be incurred by the village
Education Committee. And next is teacher fund related. The primary and upper primary school will cost rate 500 per teacher per year. And next is teacher training related. Provision of 20 days in service curriculum for all teachers every year will be supported under the current teacher education scheme. And next is disabled related. According to the special proposal, the district plan will be promoted to include children with disabilities up to rate 1200 per child per year and specially for the needy children. And next is research, evaluation, inspection and operations related. Every year provision of regular school drawing mini planning has been made for research and inspection up to rate 1500 per school. And next is girls education, elementary child care and education related. Provision for new work for meditation for SC/ST community children, especially community computer education at upper primary level. A provision of up to rate 15 lakhs for each new project and rate 50 lakhs each year for the district will be applicable under the Sarv Shiksha Abhiyan. This session prepared by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur Rajasthan. Let's see in Hindi. स्टूडेंट लर्नर्स, देखिए आज का जो सेशन है वो है सर्व शिक्षा अभियान के घटक या तत्व। ठीक है, इन घटकों को हम एक एक करके बिंदुओं के आधार पर समझेंगे, जिसमें सबसे पहला शिक्षक संबंधी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 40 बच्चों पर एक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 2 शिक्षक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक वर्ग के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है। सेकंड, वैकल्पिक स्कूली सुविधा संबंधी। प्रत्येक निवासी स्थान या घर से 1 किलोमीटर के भीतर राज्य मानक के अनुसार और नए स्कूल खोलने तथा स्थापित करने का प्रावधान किया गया। थर्ड, उच्च प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र संबंधी। आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे बच्चों की संख्या के आधार पर प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला है क्लासरूम संबंधी। प्रत्येक शिक्षक या प्रत्येक वर्ग या श्रेणी के लिए एक कक्ष होगा और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बरामदा सहित 2 कक्ष के साथ 2 शिक्षक का प्रावधान होगा। अगला है 5वां, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक संबंधी। प्रति बच्चे की अधिकतम सीमा के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें राज्य योजना के द्वारा प्रदान की जाएगी। अगला है स्कूल भवन की देखभाल और मरम्मत संबंधी। केवल स्कूल प्रबंधन समिति, ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से स्कूल समिति के विशेष प्रस्ताव के द्वारा प्रति 5,000 रुपये तक सहायता के तत्व इसमें शामिल हैं। भवन की देखभाल और मरम्मत पर की गई खर्च निधि केवल उन स्कूलों के लिए उपलब्ध होगी जिनका अपना भवन उपलब्ध होगा। अगला है उच्च प्राथमिक विद्यालय या वर्ग में हेडमास्टर के लिए एक अलग कक्ष संबंधी प्रावधान। देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय या वर्ग में हेडमास्टर के लिए एक अलग कक्ष का प्रावधान किया गया है। अगला स्कूल निधि संबंधी। कार्यशील स्कूल उपकरण को बदलने के लिए प्रत्येक 2,000 रुपये की दर से
प्रत्येक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के उपयोग के लिए ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा खर्च होंगे। इसके अलावा अगला शिक्षक निधि संबंधी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति वर्ष प्रति शिक्षक 500 रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी। प्रत्येक वर्ष सभी शिक्षक के लिए 20 दिन का सेवाकाल पाठ्यक्रम का प्रावधान वर्तमान शिक्षक शिक्षा योजना के तहत सहायता देने की बात कही गई। अगला है 11वां विकलांगों संबंधी। विशेष प्रस्ताव के अनुसार विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए प्रति वर्ष 1200 रुपये तक प्रति बच्चे और विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जिला योजना को बढ़ावा दिया गया। अगला है शोध मूल्यांकन निरीक्षण और संचालन संबंधी। प्रति वर्ष प्रत्येक स्कूल को 1500 रुपये तक शोध और निरीक्षण के लिए नियमित स्कूल चित्रण लघु आयोजना का प्रावधान किया गया। इसके अलावा अगला और लास्ट है बालिका शिक्षा प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा संबंधी। देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों के लिए मध्यस्थता विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामुदायिक कंप्यूटर शिक्षा के लिए नवीन कार्य का प्रावधान किया गया। प्रत्येक नवीन परियोजना के लिए 15 लाख रुपए तक और जिला के लिए प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपए तक का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया। तो ये जो सेशन आज का वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा तैयार किया गया है। तो आप आगे से आगे वीडियो को देखते रहें जिससे आपको अपने सेशंस को कंप्लीट करने में मदद मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।